Former Bihar Deputy Chief Minister Mr. Tejaswi Yadav of the RJD has been countering the Prime Minister's Modi Ka Parivar campaign, and he's also defended his father Lalu Prasad Yadav's personal attack against the Prime Minister made in Bihar a couple of days ago. Now, defending his father's comments, Tejaswi Yadav said that when somebody passes away in their family, as Hindus, they normally would tonsure their heads. That's the claim coming from Mr. Tejaswi Yadav. क्या हालात है इस देश के जो वो कह रहे हैं उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? मिलने का समय नहीं है किसानों से। क्यों नहीं मिल रहे भाई? गरीबी, बेरोजगारी, ये क्या है? लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की। इस पे हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भी सब परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहाँ आरती होती है। तो इस तरह कोई बात धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम करा के आए। Now, the senior Congress leader and former Madhya Pradesh Chief Minister, Mr. Kamal Nath, has also been countering the Modi Ka Parivar campaign on the part of the BJP. He says that this is nothing but a poll slogan for the BJP, which will not impact people on the ground. चौकीदार की बात की थी, अब क्या लग रहा है? देखिए, ये सब बातें करने, ये सब नारे देना सब आसान है। प्रश्न ये है जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। ये भटकता हुआ बेरोजगार एक नारे से तो उसको रोजगार नहीं हो जाएगा ना। Now, the Congress party to which Mr. Kamal Nath belongs and other constituents of the India bloc are attacking Prime Minister Modi and the BJP's Modi Ka Parivar campaign with mockery. Some are saying that after BJP ministers, the Enforcement Directorate and CBI will also change their social media bio to Modi Ka Parivar. That's the jibe coming from the opposition against the central agencies now. Others are accusing the Prime Minister, Mr. Modi, of failing to deliver on promises made to the people. Watch how this political face-off is now playing out. अगर 140 करोड़ जनता उनकी परिवार होती तो कहते हैं ना भारत मेरा परिवार है, तो इतना अन्याय क्यों किया है किसानों के साथ? ये तो मार्केटिंग के लिए है, प्रचार के लिए है, रीब्रांडिंग के लिए है और खुद को विश्वगुरु मानने के लिए स्वघोषित विश्वगुरु है। We are asking, Mr. Prime Minister, what have you done for this country in the last 10 years? You promised so many things. You promised 15 lakhs if we bring back the black money, which is stashed away. You say the entire country is your family. Why are you not giving this 15 lakhs to your family members? Why are you cheating your family members? So this gimmick is not going to work this time. 140 करोड़ इस देश की जनता है, वो आपका परिवार नहीं है। आपका परिवार बहुत अलग है। आपका परिवार है जिसको आपने इस देश का पब्लिक सेक्टर बेचा है, एयरपोर्ट बेचा है, LIC बेचा है। हाँ, पूरे देश से सारे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जो विधायक और सांसदों को खरीदा है आपने 50-50 खोखे देकर, वो आपका परिवार है। I don't know which family Prime Minister is talking about, because certainly the farmer who are protesting and 700 farmers who have been died protesting against the policy of Bharatiya Janata Party government were not the family of Prime Minister Narendra Modi. This is a reality. Prime Minister has to use this as a PR agenda. PM की फैमिली, PM का परिवार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का परिवार कुछ पूंजीपति लोग हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं। India is a country where people believe in different faiths. They believe in different gods. They believe in different goddesses. The BJP RSS combined tries to impose everything on the people. Now, that's what the opposition has to say about the Modi Ka Parivar campaign, but this campaign appears to be garnering quite a bit of support from across quarters in this country. Yesterday, we showed you how Muslim families in Moradabad came out in support of Prime Minister Modi. Today, watch how people in his own constituency of Varanasi are rallying behind this particular campaign.
ये जो विपक्ष बार बार परिवारवाद पे बात कर रहा है, क्या वो जानता नहीं है कि किसके ऊपर टिप्पणी हो रही है? ऐसा इंसान जिसने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर परिवार के लिए, गरीब जन के लिए इतना काम किया है कि आज उसको सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि हर घर में ये साइन बोर्ड लग जाना चाहिए कि हाँ, हम सब हैं मोदी का परिवार। और मोदी जी को एक नहीं, लाखों लाख करोड़ों लोग प्यार करते हैं। और आज मैं ही नहीं, सारा देश कह रहा है, हम सब हैं मोदी का परिवार। उनका जीवन का एक एक समय जो है, एक एक कण अंक जो है, उस देश के लिए है। वो किस लिए कर रहे हैं ये कार्य? वो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। कुछ पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ इस तरीके के वो वक्तव्य दिए थे कि उनका परिवार नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि जो लोग अपने पूरे देश के हर आदमी को, हर व्यक्ति को परिवार मानते हैं, उनका अपना परिवार तो होता ही नहीं है। और हम लोग ऐसे ये भी मानते हैं, हमारी जो संस्कृति ये कहती है विश्व कुटुंबक है, मतलब पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है। Second consecutive day, Prime Minister Narendra Modi reiterated the Modi Ka Parivar message and launched a full frontal attack on the constituents of the India bloc over dynasty politics or Parivarvad, this time in the state of Telangana. Addressing a rally in Sangareddy, Prime Minister Narendra Modi accused the opposition of promoting dynastic politics and stifling talent. He accused them of being corrupt and also dishonest. He said that while the Congress and its allies looted the nation, he'll spend his entire life to build and strengthen this country. Watch the highlights of the Prime Minister's speech, and then we'll bring you a ground report filed by my colleague Shomit from the rally grounds in Sangareddy. ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया। जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। साथियों, उन्होंने काला धन ठिकाने लगाने के लिए विदेशी बैंकों में अपने खाते खोले। मोदी है जिसने यहां करोड़ों गरीब भाई बहनों के जनधन खाते खुलवाए। ये फर्क है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। Well, massive crowd gathered here at Patancheru, Sangareddy to hear the Prime Minister, and we can clearly see here, thousands of crowd has gathered here. मेरे करो जो सर, कहाँ से? हमारा संगारेड्डी से। आप सुने हैं प्राइम मिनिस्टर जी को? उन्होंने कहा कि एक तो पूरे लोग हमारे परिवार है, देश के सारे नाती, और साथ साथ कांग्रेस और बीआरएस को कहा है कि ये परिवारवादी पार्टी है और इनका गेम ज्यादा नहीं चलेगा। मुझे अच्छी बात है। 7,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट किया है ना, काम भी कर रहा है ना, उन्होंने काम भी कर रहा है और सरकार भी उनकी अच्छी है। आनी चाहिए तेलंगाना में उनकी सरकार। तो अभी लोकसभा 2 महीने में इलेक्शन है लोकसभा में, इसको ऐसा आएगा 400 पार होएगा पक्का। आप बताइए। कंपलसरी 400 आते, फिर एक बार मोदी आते। जय बीजेपी, जय बीजेपी। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आप बताइए, मोदी जी का भाषण आप सुने हैं,
आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का 400 पक्का आधा सीट। सिक्के के दो पहलू का है, तो इस पे आपका क्या? वो अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है। मोदी का काम अच्छा है, मोदी का गारंटी भी अच्छा है। मोदी की वोट डाल तुम। मोदी जी पर सब कुछ बात है, उसका गारंटी बात है। वो आलतू फालतू नहीं बात करते हैं, जो बात करते हैं सही से बात करते हैं, सही काम करता है। इन लोग को थोड़ा 6 गारंटी में 3 गारंटी होता है, 3 फेल होता है।